पेड़ बन जाए, ईमानदारी, दया और सच्चाई अपनाए, यही मूल्य जीवन को सुंदर बनाए। आज की तेज भागती दुनिया में हम ज्ञान तो बहुत पा रहे हैं, लेकिन याद रखें, ज्ञान हमें योग्य बनाता है और मूल्य हमें महान बनाते हैं। Good morning to today's chief guest, respected Dr. Radhika Ramani ma'am, GSCB Principal Dorul Patel ma'am, CBSE Principal Reena Tiwari ma'am, Vice Principal Sunita Panda ma'am, Higher Secondary Coordinator Nivedita Chattopadhyay ma'am, MET Play Center Headmistress Subi Xavier ma'am, Senior Teacher Saroj ma'am, teachers, parents and my dear students. Today we are gathered here to celebrate a very special and meaningful theme, Seeds of Values. Values are not taught only from books. They are learned through actions, behavior and everyday life experiences. Values are like roots. We may not always see them, but they do hold us firm during the storms of life. They guide our decisions, shape our behavior and help us become better human beings. Just like a tiny seed grows into a strong tree, small values like honesty, kindness, respect and sharing grow into a strong and beautiful character. जब इन मूल्यों की मिट्टी में विश्वास का जल मिलता है और मेहनत की धूप पड़ती है, तो व्यक्तित्व का एक सुंदर वृक्ष खिल उठता है। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार में वैसा ढल जाते हैं। इसलिए शिक्षक और अभिभावक मिलकर इनके हृदय में प्रेम, धैर्य और सत्य का प्रकाश भरते हैं। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं सुंदर मूल्यों का उत्सव है। As teachers and parents, our role is not only to educate mind, but also to nurture hearts. Let us teach our children not just to compete, but also to care and treat everyone with love and grace, making this world a better place. आज की प्रस्तुतियाँ केवल नृत्य या गीत नहीं, यह जीवन के सच्चे पाठ है। इनमें छुपे हैं संस्कार, सीख और प्रेरणा। These performances are not just art, they are values straight from the heart. So let us clap, encourage and cheer as our little stars spread values here. Let us celebrate goodness, let us celebrate character, let us celebrate our seeds of values. Now I would like to invite Priyanka ma'am to introduce our today's chief guest, Dr. Radhika. Please ma'am. Respected dignitaries, esteemed guests, teachers and dear students. It gives me an immense joy to introduce our today's chief guest, Dr. Radhika Ramani ma'am. Dr. Radhika Ramani is a highly dedicated and accomplished dental professional with over 15 years of experience in the field of dentistry. A proud alumna of Amity School, she began her academic journey here in grade 1 and completed her higher secondary education in 2003. Coming from a family deeply connected with Amity, her entire family consists of proud Amityans. And at present, her nephew is also continuing the legacy as a student of our school. With a strong determination to pursue a career in the medical field, she successfully cleared the RPMT, that is Rajasthan Pre-Medical Test, in 2004. She went on to complete her Bachelor of Dental Surgery from Pacific Dental College and Hospital Udaipur, Rajasthan, and completed her internship in 2009. During her internship, she actively participated in several community health programs, particularly serving rural areas. Ma'am has been a member of the Indian Dental Association since 2011. She has also been actively associated with the Giants Group of Bharuch and the Rotary Club of Bharuch, contributing her service in mega medical camps, including camps at Narayan Trust Hospital to serve the needy. Demonstrating her continued commitment to her alma mater on 12th June 2022 on the occasion of our school foundation day, when a free health checkup camp was organized and Amityan doctors were invited. Ma'am wholeheartedly offered her valuable service. She has further strengthened her expertise by completing multiple certified courses in 3D root canal technology, basic implantology and aesthetic dentistry. Currently, she is a proud owner of Rami's
she continues to serve with dedication, compassion and professional excellence. Now I request CBSE Vice Principal Sunita Panda ma'am to welcome our today's chief guest Dr. Radhika ma'am. Journey of Seeds of Values, I would like to invite Play Center Headmistress Subi Xavier ma'am for welcome speech. Very good morning to our respected chief guest of today's function, Mrs. Radhika Rami ma'am, dignitaries present, parents, teachers, and all my dear children. Though the children are backstage, but we should remember them at this very hour. Today we all have gathered here to celebrate one beautiful journey of our child, of each of our children. Every moment of time you may have thought, when will my child be stepping on the stage? When will I be able to see my child performing something? So all these beautiful moments are going to be cherished now. You're going to click the photograph, you're going to keep it as a status, as a proud moment to see my child stepping onto the stage, see how beautiful her expressions, how beautiful his expressions are. So obviously this is a proud moment, I guess, isn't it? Isn't it, parents? Yes, absolutely, absolutely. It is a proud moment. हमारा बच्चा जब स्टेज पे आके वो अपने ही अंदाज से हमें कुछ सिखा जाता है, then ultimately that is going to be a memory for lifelong. The beautiful theme that has been selected for the second standard student, Seeds of Values. The time has come to such a period wherein values need to be taught. Gurukul system में बच्चे जब जाते थे, you may have seen the way how they used to respect each and everything around them. It could be food, it could be the respect to the elders, it could be the education that is being provided. But as the time has passed, we people are moving into such a area wherein values are being left behind. If I say it, it will be bad to say, but at the very moment I think I should put it up before you. कौन देख रहा है तुम्हें? कोई नहीं देख रहा. चलो wrong direction से चलो, wrong side से चलो, झूठ बोल दो. ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं as an elder we are telling the kids, and the kids are observing those things. Yes, my father and mother told a lie today to my teacher that we are going out for a function. Though we are going out for a marriage function, but the parent has told the teacher that we are moving out for an emergency. The child understood the values that I need to inculcate or get from my parent is something which should be the truth. I should say truth to my teacher, the way the teacher teaches the child. Many a times, this particular values, we normally close eyes to these things. आंखें बंद कर दे चलेगा. Honesty, ज़्यादा honest होने से कोई मतलब नहीं है. This is what normally the elders say. But these younger ones are still not knowing what exactly to be done in this world because they're living in a mixed environment. So my dear parents, we are there to help our children. There are small little molds now, wet molds. It is our responsibility now to give them a direction. See, what am I doing? I'm earning, I'm protecting the family, I'm preparing food for you, I'm taking care of you. So in the same manner, you should take care of everything around you. You should take care of the younger ones, you take care of your responsibility, your requirements. So all these values one by one, if it is going to be inculcated in the child, one fine day, our child will be a true citizen of this country, wherein you can say, मेरा बच्चा कभी इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं करेगा because it is my guidance, मेरी परवरिश है. And this particular confidence will let the child know that I should not go against my parents, my society and my country. So I think the school is going to do a better work, and along with the family and society is going to nurture this beautiful time for them. Not only this, as in when you're moving into a new world, a new environment, there are a lot of challenges that schools also even face.
every time we need to get updated with many things. So obviously, a beautiful news has come before all of us today. A ऐसा message which we were all eagerly awaiting for since so many long years. We are moving on for a beautiful expansion to happen at MAT School, Bharuch. The land that is there right at the back of this particular ground has been bought, and we are going to develop a beautiful play area for our kids. We are going to design a beautiful classrooms for our kids, wherein there will be a lot of developmental activities which can be nurtured in them. So this is a proud moment, being an Amitian over here, being an Amitian ma'am herself over here. I think all the teachers and all the parents at the same time will be so happy to hear this beautiful news of amenity getting expanded with some new amenities coming up, which is going to help the children to develop more, not only in educational sector but even in sports and extracurricular activities. So I believe in the coming up days you're going to see wonderful things happening around us and our kids excelling from what they at present are. They're going to excel in such a manner where we are going to hear their names going around the world. So let us pray for this beautiful beginnings that are going to happen for our smaller children. And with this particular note, I wish to conclude my speech, and I congratulate all the parents for spending a beautiful time and being a part of this occasion and giving your presence and blessing to the beautiful kids who are going to come up over here. So let's begin the show and be happy, clap for them, smile for them, because they want you to see you smiling. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful beginning. Before heading to the program, I would like parents not to record or take photographs. Official videos and photos will be provided to you later on. And please keep your mobile phones on silent to avoid disturbance. And please avoid eating food packets to maintain the decorum. Thank you. और अब जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया. अब मैं माइक देती हूँ अपने नन्हे सितारों का. Please welcome today's hosts with a big round of applause. Good morning, respected principal ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. Myself Aisha and myself Yuti. We are happy to welcome you all to today's program, Seeds of Values. Before we begin, let us thank God for this beautiful day. Prayer help us to become kind and thankful. So let's start the program by remembering God and asking His blessings.
संसार ओ यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा ओ यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा ओ यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा तपती है धरती जलता है अंबर पास तेरे
कंधे से कदम लेकर जब आए पहली बार, कंधे से कदम लेकर जब आए पहली बार, भाभी हमारी उंगली उसकी पर तुम्हारा दिल, बोलो बोलो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते दूर संभलते हैं, हम जब भी जाए पर देखो वो कभी लटकते हैं, वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आप हमारे अंदर तो झूठ जगाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं, वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंधे से कदम लेकर जब आए पहली बार, कंधे से कदम लेकर जब आए पहली बार, भाभी हमारी उंगली उसकी पर तुम्हारा दिल, बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। What a beautiful performance! Friends, you should ask how important it is to respect our parents and teachers who shape our future. Let's move to our next performance based on kindness. Kindness is a magic word. It makes the world bright and good. Kind, correct, a gentle way can make someone's happy day. Share your toys, help a friend. Kindness has no start or end. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
धन्यवाद, तुम भी बहुत अच्छे हो। अरे पर मेरे पास तो थोड़ा ही खाना है, अगर मैं बांटूंगा तो मेरे लिए कम रह जाएगा। धैर्य, बांटने से खाना कम नहीं होता, खुशी बढ़ती है। हाँ धैर्य, मिल बांटकर रहने से प्यार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं भी अपना खाना बांटूंगा। देखो हम सब कितना खुश है, मिल बांटकर रहने से खुशी मिलती है। मिल बांटकर रहने से दोस्ती बढ़ती है, मिल बांटकर रहने से प्यार बढ़ता है, मिल बांटकर रहना ही सच्ची देखभाल है। शेयरिंग इज केयरिंग। Now I would like to invite our today's chief guest, Radhika ma'am, to address the gathering. Please ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी काफ़ी जो कुछ मैं बोलने वाली थी बच्चे ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस एवरी टाइम बूस्ट हो रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम इतना परफेक्शन देख रही हूँ, उतना तो मुझ में भी नहीं था स्कूल में रहते। मैं जब छोटे थी ना तो मैं खुद डरती थी कि इतना कॉन्फिडेंटली मैं कैसे जाऊँ स्टेज पर। काफ़ी कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मैम ने सब सिखा दिया है, शेयरिंग केयरिंग पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे एवरीवन इज इंट्रोड्यूसिंग मी एज अ गेस्ट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। हेलो, कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग बोले डॉक्टर है, बट पहले मैं स्टूडेंट थी और आज मैं स्टूडेंट बन के इधर आई हूँ। आप ही के बीच ही जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहीं से मैं इधर से परफॉर्म करती थी, सबको देखती थी और आज आप लोगों को भी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि परिवार और परवरिश ये सब पे आज टॉपिक है। स्टूडेंट्स को परवरिश स्कूल से मिलता है, जो हमें भी मिला था और आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ। क्यों ना, क्योंकि ये परवरिश क्योंकि परवरिश और सक्सेस मुझे एमईटी से ही मिली है, ठीक है। सो एवरीवन जो यहाँ पे मौजूद है इधर, उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है, सब लोग अपना टाइम निकाल के इधर आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच ना। लर्निंग ये जो है स्टूडेंट को नर्सरी से स्टार्ट होता है। सो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग हैबिट, वो टेम्पररी नहीं है, मतलब सिर्फ नर्सरी से स्टार्ट होता है, स्कूलिंग तक नहीं है। स्कूलिंग से आगे बढ़ के बच्चों में कॉलेज में भी आता है, उसके बाद प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी लर्निंग ज़रूरी है,
ठीक है, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। बच्चों को भी ये सिखाइए कि लर्निंग और अपडेटिंग ये दोनों चीजें हैं लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। आज हम लोग जेन ज़ी और ये जो आपके जेन अल्फा, आई थिंक हमें मोबाइल नहीं आता है, हम लोगों को अगर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गेम पे ध्यान देना है, अगर कोई भी सेल्फी लेनी है उनसे सीख लो, वो हमारे टीचर्स हैं, है ना। अगर आप लोगों को कुछ डाउनलोड करने 1 घंटा लगेगा, उनको 1 से 5 मिनट दे दो मोबाइल, काफ़ी कुछ कर लेगी। मैं भी आज आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख के जा पा रही हूँ ना। टुडेज कल्चरल प्रोग्राम इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, शेयरिंग एंड केयरिंग। ऑलरेडी हमने देख लिया क्या परफॉर्मेंस दिए इन लोगों ने, हम सब समझ चुके हैं। बट क्या छोटी छोटी चीज़ें क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? कोई स्पीच नहीं देगी, छोटा सा रूटीन हैबिट हम लोग चेंज करके बच्चों का ग्रोथ कैसे बढ़ाए उस पर हम फोकस कर सकते हैं। एक्चुअली एमएडी स्कूल आज से नहीं, सालों से मैंने देखा है कि कल्चरल प्रोग्राम पर ध्यान देती है, पढ़ाई पे ध्यान वो देती है, बस साथ साथ बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट पे ध्यान देती है। बच्चों के हेल्थ है उस पर हमने आई थिंक मैं कैम्प किया था 2-3 साल पहले, तो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देती है, उनके ग्रोथ पे। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन आप सबको पता है कि वो पहले से ध्यान देती है, और उसका आज भी एक एग्जाम्पल हूँ, मैं कभी क्लिनिक लेट नहीं जाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई काम होता है, मेरे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मेरे पेशेंट्स है, मेरे लिए बहुत लोन है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आज लोग वो भी इधर मौजूद है। काफ़ी सारे केसेस है जो मेरे लोन है। पंक्चुअलिटी इसलिए कि हम लोग भी जब छोटे थे ना, इनकी तरह अगर हमें 5 मिनट लेट हो जाता था ना, तो बाहर कोई भी टीचर या सर खड़े रहते थे, हमें बोलते थे आज मत आओ। हमें थोड़ा नहीं लगता था कि अरे भाई क्यों, सिर्फ 5 मिनट लेट है ना, क्या हो जाएगा, है ना। पर वही चीज़ें यहाँ एमएडी स्कूल से इतनी गिफ्ट में मिली हमें कि आज हम पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन पे काम करते हैं और यहाँ तक पहुँचे, और ये सब एमएडी ने ही हमें दिया। और उस टाइम से क्या आज भी मेरे यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं एमएडी से, तो आई फील प्राउड क्या है मेरे स्कूल से है ना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बड़ों के मोस्टली डॉक्टर एमएडी के, आप कहीं पे भी जाओगे अगर पूछो कि मैं कहाँ से स्कूलिंग की है, तो दे विल से कि हाँ भाई हम लोग को एमएडी से है, एमएडी से हमने स्कूलिंग किया। सॉरी, एक्चुअली पेरेंटिंग ना इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट इजी। आप मान लो कि मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आता है ना, तो आई टेक टाइम, मतलब मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल लेवल जो है उसको मैच करने के लिए आई टेक टाइम। मतलब मुझे अगर कोई एडल्ट को ट्रीट करना है तो मैं इजीली उसको 15-20 मिनट में फ्री कर दूँगी। पर अगर मेरे लिए अगर कोई बच्चा आ गया ना, मेरे को सिर पकड़ना पड़ेगा, भाई इसको कैसे, मतलब क्या से चालू करो, कहाँ से स्टार्ट करो। पहली सिटिंग मेरी सिर्फ बच्चे को समझने में जाती है जो डिफिकल्ट है। और पेरेंट्स हेड्स ऑफ टू यू, टीचर्स हेड्स ऑफ टू यू कि आप लोग ये कर रहे हो। आप तो पूरे दिन पूरे टाइम उन लोगों के साथ रहते हो, हमारी तरह सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे का नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर ही भी सिखाती है, पूरा एक बुक उसके होता है कि बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करो। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्कूल के टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी थोड़ा एफर्ट कर लें, उनका साथ दे सके, उनको अप्रिशिएट कीजिए टीचर्स को कि इतना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों के ग्रोथ के लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें कि पूरे दिन में थोड़ा टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आई थिंक आजकल बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, नहीं टाइम मिलता है, हम भी जानते हैं 24 आवर्स जो हम लोग साथ में नहीं रह सकते, बट एटलीस्ट पूरे दिन में 1-2 घंटा हम लोग उनके साथ बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनके लिए जो है कुछ नई नई एक्टिविटी उनके साथ, मतलब उनके साथ खेल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन पर डिस्कस करने की, उनके साथ डिस्कस कीजिए, शांति से बैठ के पूछिए पूरे दिन में क्या हुआ, तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, स्कूल में क्या करवाया। यही चीज़ आप सिर्फ 1 घंटा बच्चों को देते हो ना, मैं मानती हूँ कि टीवी स्क्रीनिंग और मोबाइल स्क्रीनिंग से ज़्यादा बेहतर है। दूसरा कि आजकल जो बच्चों को बड़ों का आदर देना, रिस्पेक्ट, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने इधर दिखा दिया कि रिस्पेक्ट बड़ों की कैसे करनी है, शेयरिंग कैसे करनी है।
घर में बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देना सिखाइए। एंड डेफिनेटली अगर उसमें ये चीज़ है ना, आगे जाके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रोथ में भी उसको ये रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट वो स्कूलिंग से पेरेंट्स से ये सब सीख के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आउटडोर गेम्स पे ध्यान दीजिए। भाई क्यों मोबाइल देना है, दीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इससे टेक्नोलॉजी सिखाइए, पर उसको ब्रेन को कंट्रोल मत कर लीजिए। ब्रेन को कंट्रोल कर देगा तो हमारे बच्चे का ग्रोथ कब होगा, ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज पेरेंट्स थोड़ा, मैंने कल ही एक पेशेंट कर रही थी, वो मदर के साथ आई, वह 13 इयर्स की लड़की, उसको ना ही इंटरेस्ट था हमारी बात सुनने में, ना ही देखने में इंटरेस्ट था। मैं बिठा दी हूँ सामने पेशेंट को कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग ध्यान दो, बट उसका स्क्रीनिंग, उसका गेमिंग चालू था, उसके रील्स चालू थे। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, कि उन लोगों के ग्रोथ के लिए, उनके आगे करियर बढ़ाने के लिए मोबाइल ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं, रूटीन लाइफ में इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको पूरे टाइम बच्चों को दे दें। हमने क्या किया है, हमारे कामों को प्रायोरिटी देने के लिए हमने ऑप्शन रख दिए बच्चों के लिए। जो भाई मोबाइल ले लो, मैं ये शॉपिंग कर लूँगी, वो मोबाइल ले लो, मैं खाना बना दूँगी, पापा है तो भाई मुझे ऑफिस का काम है, आप मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, पर तू अपना काम चालू रख, बिकॉज ये ऑप्शन है। तो ये चीज़ से क्या होता है कि आप देखना कि क्या वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है अंदर से, कुछ अच्छा देख रहा है अंदर से, क्या देख रहा है, एटलीस्ट आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी सिखाइए, उसको उसके सारे अच्छे अच्छे यूजेस सिखाइए। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि लोग सोशल गैदरिंग पे काम करें। आज सच में ये सोशल गैदरिंग है, मुझे लग रहा है कि मैं आज आप लोग से और बच्चों से काफ़ी कुछ सीखने जाने वाली हूँ, है ना। और उनके रोल मॉडल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर देयर फर्स्ट टीचर। टीचर्स तो बाद में आते हैं, पर जो भी चीज़ बच्चा सीखता है वो सबसे पहले पेरेंट्स से सीखता है। और उसके जैसे मम्मी एक बार मेरी मम्मी ने ये चुन्नी डाली है, ऐसी बिंदी की है, मैं ऐसा ही उसको कॉपी करूँगी। दे आर ऑलवेज वॉचिंग, कॉपी करते हैं। आप देखना कि अगर कोई लड़का है, मेरे फादर ने तो ये शर्ट पहना है, मुझे भी सेम ऐसा करना है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर फैमिली में लाइए, ताकि बच्चा आगे बढ़े, आगे उसका ग्रोथ हो। उन लोगों को मनी सेविंग ट्रिक्स सिखाइए, जैसे कि कोई भी पैसा है उसको मनी की वैल्यू करना सिखाइए, कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, कहाँ यूज़ करना है कहीं नहीं। इससे ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग कहीं उन लोगों को नहीं मिलेगी। अभी आई हैव सीन कि देयर आर सो मेनी पेरेंट्स कि मेरा बच्चा कम मार्क्स है, नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड टू अदर्स। क्यों भी मेरा बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, अरे मार्क्स भी छोड़ो, आप उसको सिखाइए कि ट्राई 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 करते रहिए, एक दिन तो जरूरत से सक्सेस मिलेगी। थोड़े कम आ गए, उसको थोड़े कम में डांटिए मत। हार्श पेरेंटिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसको समझाइए, मेहनत करवाइए, थोड़ी बहुत एफर्ट से वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, और बच्चे लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, वो छुपाते हैं, गलत बोलते हैं, है ना। तो वो चीज़ से क्या होता है कि उनको डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांट देंगे, कुछ बोल देंगे, उसके कारण वो लोग वहाँ से झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी उनको छोटे छोटे काम करिए, अगर वो अच्छा किया हो, बुरा किया हो, बुरा है तो समझाइए, अच्छा किया है अप्रिशिएट कीजिए, उनको थैंक यू बोलना सिखाइए, हर एक को गॉड को थैंक यू बोलना सिखाइए, संस्कार दीजिए। जो चीज़ टीचर्स के साथ आप लोग मिलकर करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे वो भी आगे बढ़ेगा। नाउ इट्स अ क्वेश्चन राउंड। अगर ये थोड़ा मेरा रिलेटेड है और वो है डांस से रिलेटेड, तो मैम ने बोला मुझे कि थोड़ा ओरल हाइजीन पे डिस्कस करेंगे ताकि पेरेंट्स को और बच्चों में थोड़ा अवेयरनेस हो। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू ब्रश योर टीथ at night or twice daily? Anyone? अच्छा, you are the patient. अरे कितना बच्चा किसका रात को ब्रश करके सोता है? ओके, वेरी वेल, इट्स अ गुड हैबिट, क्योंकि देखो वो कितने परसेंटेज, मतलब आई थिंक हार्डली 5% इतना जो लोग बैठे इंक्लूडिंग टीचर्स, आई थिंक टीचर्स ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, टीचर्स को
को भी ज़रूरत है ओरल हाइजीन पे फोकस करने की। सॉरी बट मैं चाहती हूँ कि आज ये टॉपिक आपको स्पेशली इसीलिए मैं आई हूँ कि थोड़ा ओरल हाइजीन पे जो लोग भी है फोकस कर। ओरल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट, ये मेरे पेशेंट है उनको पता है, ये भी आई थिंक नोन केसेस आते हैं, तो काफ़ी सारे मैं देख सकती हूँ। उनको पूछिए कि जब दांत में दर्द होता है तो क्या बेरेबल होता है? नहीं, किसी ने फील किया है दांत का दर्द, है ना? बेरेबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो 9 मंथ्स हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नॉलेज देते हैं कि भाई बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, अरे आप ये हेल्दी खाइए, बच्चा हेल्दी रहेगा, आप वो खाइए, फ्रूट्स खाइए, बहुत प्रोटीन खाइए। तब तो हम सब कुछ बोलते हैं कि भाई हाँ भाई प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, हार्डली उसको 6 महीने से दांत स्टार्ट आना होते हैं। 2-2.5 साल के बच्चा अगर उसको दांत आ गए, हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई ले तू आइसक्रीम खा, इसका टेस्ट कर, चॉकलेट खा, चिप्स खा। क्यों भाई क्यों? हम ऐसा नहीं है कि उनको पूरी परहेज करवाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको रूटीन बनाए, इट्स हैबिट, मतलब बैड हैबिट है। आप देखना आपका बच्चा कोई भी है, पैकेट फूड है, आज पैकेट फूड खाया, कल हमने कोई बड़ा पाव लिया वो खा लिया, परसों कहीं पे वीकेंड पे बाहर चले गए तो वो खा लिया। तो रूटीन मत बनाइए, एटलीस्ट इंटरवल रखिए, कोई भी चीज़ में थोड़ा गैप दीजिए। आज हमने कुछ जंक फूड खिलाया है, एटलीस्ट 20-25 डेज हम लोग थोड़ा उसको गैप दे सकते हैं। अभी जो ये सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट राइट, उन लोगों में मिक्स डेंटिशन होता है। मिक्स डेंटिशन क्या होता है कि दूध के दांत और पके दांत ये दोनों मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास कई पेरेंट्स होते हैं, अरे कोई मैम ये तो सूखा दांत है ना, सड़न लगा है, निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों? क्योंकि उनके साथ दूध के दांत रहने वाले हैं 2 साल से लेके 11 साल तक। अगर वो बच्चा जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है वो खाना ही नहीं चबा पाएगा अगर टीथ प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो कैसे ग्रो करेगा? नहीं कर पाएगा। उसके मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं कि भाई उसके 20 टीथ होते हैं वो में उसके उसमें से हार्डली 4-5 अच्छे होते हैं, ना इस साइड से चबा पा रहा है ना इस साइड से चबा पा रहा है। अरे खाएगा तो डाइजेस्ट होगा तो मिनरल्स एंड विटामिन मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, है ना? और अच्छी हैबिट डाल के उन लोगों को थोड़ा रात का ब्रश कंपल्सरी करवाइए। अभी काफ़ी सर्वे हुआ है कि जो हमारे ओरल कैविटी में जो भी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, वो ट्रैवल करते हैं थ्रू सलाइवा और जाते हैं ब्रेन तक, हार्ट, किडनी और लंग्स और लिवर तक, जिससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अगर हमारे कैविटीज है, खराब सड़न है, वो ट्रैवल करके अगर कहीं पे जा रहे हैं तो वो इन सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। प्लीज पेरेंट्स स्टार्ट ब्रशिंग फ्रॉम टुडे एट नाइट। एटलीस्ट बच्चों को ऑलरेडी दूध मीठा होता है, उसमें शक्कर डाल के क्यों दे, लैक्टोज है उसमें, बहुत मीठा होता है ना? कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स बोलते हैं रात को खाना नहीं खाते, दूध दे देते एंड वो सोने चला जाता है। पूरी तरह ये बैक्टीरिया मुंह में रहेंगे, उसको कैविटी फॉर्म करेंगे। और काफ़ी सारे मैंने देखा है अभी तो पिछले 10-12 सालों में कि ये जो बच्चे हैं ना उनमें रूट कैनाल के और एक्सटेंशन के केसेस बहुत बड़े। मैं सच बोलूँ हमारे टाइम पे इतने केसेस नहीं थे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं, आप देखना पहले के पेरेंट्स के पास इतना मेरी पैसा नहीं था या एवरी वीकेंड पे बाहर खाना नहीं खाते, तो बहुत फर्क देखने को मिला है। तो वो चीज़ों से हम बचे रहते हैं। यूज़ कीजिए, पैसा यूज़ करिए उनके ग्रोथ के लिए और उनके अच्छे वेल बीइंग के लिए, ठीक है? अभी मेरा एक है कि आज से सब लोग क्या 2 टाइम ब्रश करोगे, इनफैक्ट पेरेंट्स को देख के भी बच्चा सीखेगा। तो फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, अगर सोने जाना है 2 मिनट स्पेयर कर रहे हैं, रात को आप लोगों को प्लीज़ कंपल्सरी ब्रश करना है। अगर आप लोगों में से 5 जने ने आज स्टार्ट कर दिया तो मेरे से ज़्यादा कुछ कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को फ्यूचर में ओरल हेल्थ इश्यू से बचा रही हूँ, है ना? तो दिन में 2 बार ब्रश कंपल्सरी नहीं, दिन में 2 बार ब्रश कंपल्सरी। तो डे ब्रशिंग क्या होती है कि वो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है।
जबकि नाइट ब्रशिंग इज फॉर आपकी इंटरनल हेल्थ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। जितना मुंह अच्छा रहेगा, है ना, हम यहीं से ग्रोथ बढ़ाना इसीलिए चाहते हैं, मुंह अच्छा रहेगा तो अंदर से हमारा पूरा बॉडी अच्छा रहेगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई थिंक सब हो गया है और मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को भी वेट करना नहीं है। तो ओवर टू यू मैम। ओके, थैंक यू। आपके प्रेरणादायक शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताई है, हम सारे टीचर्स, पेरेंट्स एंड हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे जीवन में उसे ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद। और आज आप आपका सेमिनार भी कैंसिल करके यहाँ पर आए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। कुछ आवाज़ आ रही है पेरेंट्स आपको? मुझे तो आ रही है, क्योंकि हमारे पीछे जो छोटे छोटे धुरंधर हैं वो आगे आने के लिए मचल रहे हैं। ओके, तो अब हम ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए हमारे उन धुरंधरों को बुलाएंगे, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत होगा। Hey Adhyar, why are you sad today? I have forgotten to complete my homework, so I afraid the teacher will punish me. Adhyar, it's your responsibility to complete your homework on time. समय पर होमवर्क करना, अपना बैग और बुक संभाल कर रखना, कक्षा साफ रखना और बड़ों की बात मानना। जब हम जिम्मेदार बनते हैं तो हमारे मम्मी पापा टीचर खुश होते हैं और हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं। Please welcome our talented students for big applause for them for their wonderful performance based on theme of responsibility. चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में वायर बनने दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, डर से मस ना होंगे हम। दुनिया का इशारा चलेगा हम, मंजिल का इशारा चलेगा हम, दुनिया का इशारा चलेगा हम, मंजिल का इशारा चलेगा हम। ये सोती भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है।
Thank you friends, you gave a lovely message through your performance. तो चलिए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम अपना हर काम जिम्मेदारी से करेंगे। यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो बोलो क्या ये जिंदगी है। अरे कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। अरे कृष्ण, आज तो फ्रेंडशिप डे भी नहीं है, फिर तुम ये दोस्ती वाले गाने क्यों कर रहे हो? अरे आप सबको तो नहीं पता, हमारे आज के इस प्रोग्राम का अगला टॉपिक ही तो है। यानी फ्रेंडशिप? हाँ बिल्कुल। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। अलीजा, अब तो हमारी दोस्ती पक्की हो गई। हाँ बिल्कुल, सिर्फ अपने ही नहीं, प्रकृति से भी हमारी दोस्ती पक्की हो गई। हाँ बिल्कुल, प्रकृति है हमारी दोस्त प्यारी, देती है खुशियाँ ढेर सारी। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती माँ को हंसाओ। हरी भरी हो जब धरती, खुश रहती है हर बस्ती। प्रकृति का करो सम्मान, यही है जीवन की पहचान। Let's walk through the nature together.
begins with a small step. Through our program, we planted tiny seeds of values like kindness, honesty, sharing, and friendship. If we water these seeds every day with good actions, they will grow into beautiful habits. आज बोए गए ये मूल्यों के बीज कल बनेंगे सफलता के वृक्ष। इन्हीं सुंदर संदेशों के साथ हम प्रस्तुत करते हैं आज का अंतिम परफॉर्मेंस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नन्हे सितारों का। ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर। Efforts. They made this event very special, and through special thanks to our chief guest, Dr. Radhika ma'am, for sparing time from her busy schedule. Okay, I would like to also thank management, teachers, and parents, and my dear students for making this event a grand event. Thank you so much.